Hello everyone. This is a particular session for descriptive, and we are going to talk about the points of national security to be connected with any topic. Okay. So if you are new to this channel, then kindly subscribe our Telegram channel at the rate IB exam. If you have any doubt or query, then you can just mail us beatinterview@gmail.com. So as you all know, as I have already told you that what is the scheme of the examination. Tier 2 comprises 50 marks, where 30 marks is of essay writing only, and rest of the section like RC or reading comprehension or pressy will be from internal security part. And whatever we will study in descriptive, that is categorically and directly benefiting you in the interview and psychometry. Okay, so this is very, very important. So as I have already told you that whatever the level of cutoff and who can start preparing for IB, so watch the previous video. Why to be serious for tier 2, what are the questions to be asked, what were the previous questions 2021, 2017, 2013, most important topic for 2024 like this. And उसके बाद किस तरह के बच्चों के साथ बातचीत होगी, और हमारा पेड बैच के लिए अनाउंसमेंट हमने कर दी थी, जिसको हम लास्ट में फिर से कर देंगे। जो लोग नहीं पहली बार जुड़े हैं उनके लिए ठीक है, कल से ये पेड बैच की क्लासेस स्टार्ट होंगी 30th of June। क्लास टाइम 8 PM डेली, ड्यूरेशन ऑफ द क्लास 60 to 90 मिनट, कोर्स ड्यूरेशन 2 weeks और 15 वर्किंग डेज, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे डाउट एंड रिवीजन, संडे मॉक टेस्ट एंड इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ IB। ओके, नाउ टुडे सो हाउ टू एनरोल में मैं बता दूंगा बाद में, जिसको कोई दिक्कत आ रही होगी। अच्छा जी, अब लेते हैं बात आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करके। आज का ऐसे का टॉपिक है बैलेंसिंग सिक्योरिटी नीड्स विद पब्लिक एस्पिरेशंस। Balancing security needs with public aspirations. Now, I want you to tell me in the chat box or one-to-one in the session that what are the national security-based current affairs in 2023 or till January 2024. Any kind of topic. Like one example, I can tell you Manipur violence. Yes or no? Again, this can be the important topic of discussion during the interview. Yes or no? Second topic is Haryana violence, Mewat violence, Nuh violence, if you know. Yes or no? Also, you can use like a farmer protest, 3 farm bills. That is not related to 2023. That was a bit earlier. But yes, you can see. Also, the protest done by the Agnipath scheme. Yes or no? So, what is the use of police? What is the use of military? What is the use of paramilitary? What is the use of IB? What is the use of NIA? What is the use of RAW? Just to check, just to control any kind of rights, any kind of ambiguity, any kind of turmoil in the country. किसी भी तरह के आंदोलन को खत्म करना, रोकना, बचाना है, and to sustain the peace in the country. That is mentioned in Article 51A in the Constitution. So इस तरह की चीजों के अंदर keep commenting, maintain law and order. Yes, Jammu Kashmir is also. Delhi riots, coup in Myanmar, Haryana sports player protest, very good. Railway protest for NTPC, very good, Aniket. Jammu Kashmir, Rajouri, Poonch terrorism, very, very good. In Gaya, many aspirants burned the train and also blocked the train way, very good. Myanmar issue is also there, very good. So, how public is related? So, here you have to connect with all India-based public sentiment related topic. And what is that topic? If you have to write on that stuff, then you must have to choose either one, either two, or three or four points of issues which are going on and how they are connecting the public aspirations more कम या ज्यादा, more or less किसी भी वे में. Ahmedabad violence, very good. Hamas attack on Israel, stone pelting on religious procession, border infiltration through Manipur by Myanmar militants. Very good, Gopi Krishnan. Very good knowledge of internal security, and it seems that you are preparing for UPSC also. Banning of various political groups in J&K. Very good, Tarun. Especially keeping in mind the election in J&K. Very, very good. And also, Supreme Court has told the central government to conduct the election in J&K, assembly election, anyhow. Okay. Yes, very good. So many topics are there. Now, today I am connecting this topic with the Agnipath scheme only. Okay, so what is Agnipath scheme? India's announcement of the Agnipath scheme, it is a revolutionary short-term recruitment program for the armed forces, sent shockwaves through the nation. इसने आंदोलन को तो जन्म दिया क्योंकि शॉकवेव आई एकदम से कि भैया जहां 15 साल की नौकरी थी वो तुमने घटा के 4 साल की कर दी, और उसके बाद भी परमानेंट नहीं है. While hailed as a transformative step towards मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, सरकार कह रही है कि ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, ट्रांसफॉर्म होगी पूरी की पूरी हमारी आर्मी. The scheme sparked widespread protest, igniting fierce debate about balancing national security imperatives with public aspirations. लोगों की इच्छा के अवरुद्ध जाके ये चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं राइट्स क्रिएट हो रहे हैं.
तो इसका मतलब हुआ कि जो अग्निपथ स्कीम है उसको आपको देखना पड़ेगा कि इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका एक बैलेंस सोल्यूशन क्या हो सकता है. सो नाउ टेल मी समथिंग अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ अग्निपथ स्कीम. और इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू टेक द लेंस विद अ व्यू टू हैविंग द गवर्नमेंट इन योर माइंड. सरकार आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सरकार क्या क्या भला सोच रही है ऐसी स्कीम को लाने के बाद. एंड वन ऑफ द पॉइंट्स इज गिवन इज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन. Very good. Shivansh, Afaspa, continuation in Manipur. Protest by Muslim girl for hijab dressing. Old but relevant. User is saying we are not able to see comment of others as mentioned by Tarun and Krishna. ठीक है, 1-to-1 है सारे sessions. Young minds will be having the chance to perform in serving the nation. Very good, Priyanka. Very good, positive point. So we can have some positive point. Like first is operational agility. Agility means flexibility. If you are lacking in vocabulary, then keep noting down the important words with their synonyms. The Agnipath scheme inject young blood into the forces, enhancing operational fluidity and responsiveness to modern warfare demands. आज के जीवन की, आज के अगर वॉरफेयर की डिमांड देखें, युद्ध की डिमांड देखें, मॉडर्न युद्ध की डिमांड देखें, तो एक जवान, एक यंग आपको मिलिट्री आर्मी के अंदर लोग चाहिए. एंड यूथफुल सोल्जर शुड बी टेक सेवी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवी? सेवी मींस समवन हु इज वेरी वेरी स्किलफुल. और ब्रिटिश इंग्लिश में स्किलफुल की स्पेलिंग होती है SKILFUL, डबल एल नहीं आता बीच में. अडेप्टेबल होनी चाहिए, अडेप्ट होनी चाहिए. अगेन अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल एट नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंटेम्प्रेरी बैटलफील्ड्स. चैलेंजेस अगर बढ़ रहे हैं और चैलेंजेस अगर तरीके से नए नए आ रहे हैं तो हाँ, UCC आता है, टूर ऑफ ड्यूटी आइडिया कॉन्सेप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. वेरी गुड मिस्टर गोपी, प्रियंका, सौरभ. बर्डन ऑफ पेंशन will be reduced. Very good. Which will be used for defense acquisition. More opportunities to youth. Very good. It will help the government in reducing the average age of military. Very good, Anirudh. तो पहला काम तो हो गया भैया, हमें ऑपरेशनल एजिलिटी को इंक्रीज करना. बात समझ में आ गई? अगर आपके दिमाग में पॉइंट होंगे सो दैट यू कैन स्प्रेड दैट पॉइंट. अगर पॉइंट ही नहीं होगा, लिखोगे क्या? तो पहली समस्या ये आएगी आपको एग्जाम में कि कौन सा टॉपिक चूज करना है. आप टॉपिक कोई भी चूज कर लो, समस्या ये आएगी उसके अंदर लिखना क्या है, और किसमें आपके पास इतना कंटेंट है जिसमें आप 400 वर्ड्स आराम से लिख सकते हो. बोलो हाँ या ना. You have to choose the topic for which you can write almost 400 words in a very lucid way, in a very clear way, according to the demand of the topic. The second point of positivity is cost effectiveness. Why cost effectiveness? अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है. और शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट रिड्यूसेस ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म पेंशन बर्डन. It will free up the resources for critical modernization initiative like upgrading equipment and bolstering technological capabilities. यहाँ पर एक वर्ड आया बोल्स्टर. बोल्स्टर वर्ड वर्ब का काम करता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना. द मीनिंग ऑफ द वर्ड बोल्स्टर इज स्ट्रेंथन. एंड इन योर नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव प्लीज एड सच वर्ड्स इन योर राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑन. ओके, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है. इंग्लिश थोड़ी थोड़ी, तरीका बाद में बता देंगे कैसे लिखना है. पहले पॉइंट दिमाग में होने चाहिए. बिना पॉइंट के कुछ नहीं लिख पाओगे. बट यू कैन नॉट यूज पॉइंट्स इन द एग्जामिनेशन. If you use the points in the examination, it is okay, but it is not the usual way of writing essay. अच्छे पॉइंट लिखे होंगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे. जनरल पॉइंट्स लिखे होंगे तो नंबर भी जनरल मिलेंगे. द फिस्कल प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब है इंटेलिजेंस होता है वैसे तो प्रूडेंस का, बट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर्स अ फाइनेंशियली रोबस्ट एंड फ्यूचर प्रूफ मिलिट्री. तो आपके पास जो मिलिट्री होनी चाहिए आखिर में वो रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है टैलेंट पूल डाइवर्सिफिकेशन. जिस टैलेंट को पूल कर रहे हैं, पूल का मतलब है जिस सेट को हम ले रहे हैं टैलेंटेड बच्चों को, वो एक डाइवर्सिफाई रेंज में काम करेगा 4 साल के बाद. क्योंकि अग्निपथ टैप्स इनटू अ वाइडर टैलेंट पूल ड्रॉइंग इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स. दिस इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश पर्सपेक्टिव फोस्टर्स, फोस्टर का भी मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना, इनोवेशन एंड एनरिचेस द मिलिट्रीज इंटेलेक्चुअल कैपिटल. आई वांट टू टेल यू 2 थिंग्स नाउ. पहला पॉइंट वोकेबलरी से रिलेटेड एंड सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू थॉट. वोकेबलरी से रिलेटेड है, इफ यू कीप यूजिंग द सेम वर्ड इन एवरी पैराग्राफ इट विल मेक द पैराग्राफ मोनोटोनस. यस और नो? बोरिंग हो जाएगा. तो इसलिए यू मस्ट हैव टू लर्न सर्टेन सिनोनिम्स फॉर स्पेसिफिक वोकेबलरी. कुछ 10-20 वर्ड की आपको 5-5, 6-6 सिनोनिम आने चाहिए ताकि आपको सेम थॉट यूज करना पड़े. यू मस्ट हैव वैरायटी ऑफ वर्ड्स फॉर सेम थॉट. यस और नो? बात समझ में आ रही है या नहीं? और दूसरी बात ये थॉट से रिलेटेड कि अभी जो आपको काम करना है फॉर द नेक्स्ट 10 और 20 डेज, यू मस्ट हैव टू पिक एनी वन टॉपिक और उसके कम से कम 10 पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में सोचना है. अगर अभी से ये सोचना शुरू कर दिया तो पेपर में बताओ 10 याद आएंगे पूरे, या 5 ही याद आएंगे, 6 ही याद आएंगे? पेपर में 10 से ज्यादा याद नहीं आ सकते, 10 से कम याद आएंगे. यू कैन रिमेंबर ओनली अ फ्यू ऑफ 10, अ फ्यू ऑफ 20 ओनली, नॉट ऑल द 10 और ऑल द 20. यस और नो?
So now you have to start remembering and memorizing all the things. वो चाहे आप अब कंटेंट में से करो, चाहे मेरे पास से करो, चाहे कहीं से भी करो, इसको इस तरह से पॉइंट को जनरेट करना सीखो, क्योंकि विदाउट पॉइंट्स अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है, यू कैन नॉट असेंबल योर एसे। G20, G21, new bills, BNS, BNSS, BSS, yes, Central Armed Force can also be modernized indirectly through Agniveer scheme. ठीक है. Efficient use of limited resources provided to armed personnel. Very good. अच्छा, अब क्या होगा? फोर्थ पॉइंट आएगा, स्किल डेवलपमेंट फॉर सिविलियन लाइफ। जो सिविलियन लाइफ जीने वाले लोग हैं 4 साल के बाद, उनकी कम से कम एक चीज तो बढ़ी, स्किल तो बढ़ी। पोस्ट सर्विस अग्निवीर्स हु आर द रिक्रूट्स अंडर द स्कीम री एंटर द सिविलियन वर्कफोर्स इक्विप्ड विद वैल्यूएबल स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसिप्लिन एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस। उनको हथियार चलाने आते हैं, डिसिप्लिन में है, पंक्चुअल है, परसिवरेंट है, लीडरशिप की क्वालिटी है, जितने भी OLQ होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी होते हैं, उस तरह के इकोसिस्टम में अगर रहकर आए हैं और वो जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो दे मस्ट बी मोर ऑनेस्ट, they must be more punctual, they must be having more qualitative aspect of leadership, and this translates to a more employable and dynamic skilled youth population in the next 10 or 20 years if we see the long term impact. Yes or no? उसके बाद अगला पॉजिटिव पॉइंट है हमारी सिक्योरिटी नीड्स के लिए, रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी। हाउ इट विल रिड्यूस द ब्यूरोक्रेसी? दिस पर्टिकुलर स्कीम streamlines recruitment and promotion process, minimizing bureaucratic hurdles and ensuring quicker career progression for meritorious soldiers. जो सोल्जर 4 साल में निकले उनमें से 25% तो वहीं बाद में रिक्रूट हो जाएंगे, रिक्रूट, और बाकी जो बचे हैं वो मेरिटोरियस अगर होंगे तो फटाफट से किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल या Tier 1, Tier 2, Tier 3 से कम निपटेंगे। अब कहने के लिए ये ठीक है, बाद में जब अपन क्रिटिसाइज करेंगे तो बाद में कह देंगे कि कहने के लिए सरकार कहती है, लेकिन रेलवे की वैकेंसी हर साल लोकसभा से पहले आती है ना। दिस विल ऑल्सो स्ट्रेंथन मेरिटोक्रेसी एंड बूस्ट मोरल विद इन द रैंक। पहली बात तो मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द मेरिट सिस्टम। अच्छे और बुद्धिमान लोगों के द्वारा चलाई जाने वाले सिस्टम, तंत्र या सरकार को मेरिटोक्रेसी कहते हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है मोरल। मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो इस तरह की चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। वन टाइम सेवा निधि पैकेज एट द एंड ऑफ देयर 4 ईयर सर्विस। वेरी गुड प्रियंका। चलिए, अब ये सोशल मोबिलिटी को एनहेंस करेगी। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाएगी। इट विल एनहेंस, इट विल इंक्रीज द सोशल मोबिलिटी बिकॉज अग्निवीर पॉलिसी opens door for aspiring soldiers from underprivileged backgrounds who may not have access to traditional recruitment channels. अभी तक हो सकता है जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू वो नहीं जा पाए और उनकी इंग्लिश वीक है, उनकी लोकल लैंग्वेज पे कमांड वीक है, बस उनको शरीर से ठीक है, लेकिन 4 साल की डिसिप्लिन्ड सर्विस करने के बाद हो सकते हैं उनके पास मोर चैनल्स खुलते हैं। सो दिस प्रमोट्स सोशल इंक्लूसिविटी एंड प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। अब वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं, एक बार आप गवर्नमेंट सर्विस कर लेते हो, बेशक आप MTS कर रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट में, और बेशक आप SC/ST कम्युनिटी से हो, एक बार आपने 4 साल के लिए एक बढ़िया ऑफिस में किसी अच्छे IPS या IAS ऑफिसर के अंडर में काम कर लिया, इकोसिस्टम इंप्रूव होएगा, लाइजनिंग इंप्रूव होगी, क्वालिटी बढ़ेगी, इंग्लिश बढ़ेगी, सोशल अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ेगी। और यही तो इन लोगों को चाहिए अगर ये डायरेक्ट सोल्जर बन जाते हैं। और जनरली माय फादर सेज टू मी कि इस देश के अंदर तो कम से कम मिलिट्री की 2 साल 1 साल की जो ट्रेनिंग है या सर्विस है वो फिक्स हो जानी चाहिए। Next is reserve force creation. We will talk about only 10 positive points. We can have more than 10 also, but we will discuss only 10. Then we will move ahead related to negatives of the current topic. So it will reserve force creation. Agniveers returning to civilian life form a readily available trained reserve force for national emergency. कोई भी नेशनल इमरजेंसी आएगी तो जो ये 4-4 साल में निकल रहे हैं, सिविलियन बन रहे हैं, ये रेडिली अवेलेबल ट्रेंड रिजर्व फोर्स होगी हमारी, फटाफट बुला सकते हैं। आज ये लोग NCC या NSS की तरह ही हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल तैयार लोग हैं, ये तो अभी गए नहीं है, ये तो स्कूल कॉलेज के थ्रू तैयार हुए बस। यस और नो? दिस बोल्स्टर इंडियाज ओवरऑल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। और ये दिमाग में आया भी कब? जब चाइना लॉकडाउन के दौरान। हाँ भाई, आगे पूजा पाठ करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एज। आज की सोसाइटी में वॉरफेयर जो हो रहा है, युद्ध जो हो रहा है, वो किस बेस पे हो रहा है? आज इंसान इंसान से नहीं लड़ रहा है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से लड़ रही है। आज ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़ाई कर रहा है, ड्रोन की लड़ाई हो रही है। तो द स्कीम प्रायोरिटाइजेस टेक सेवी रिक्रूट्स फैसिलिटेटिंग स्विफ्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड ड्रोन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन की टेक्नोलॉजी को कट एज करेगा। दिस इंश्योर्स इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस रिमेन एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब यही क्वेश्चन आपके पास IB ACIO में इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू
and write down the question of interview. What are the extra skill sets you are coming with in the department? What are the extra skill set you are coming with in the department? आपकी हो सकती है कोई हॉबी है जेम्स बॉन्ड की मूवी देखना, XYZ कोई भी आपकी हो सकती है, ग्रेजुएशन डिफेंस या स्ट्रेटेजिक साइंस में है, हो सकता है ना। हो सकता है आपके बैकग्राउंड में आपके पिताजी, चाचा जी, दादाजी आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, IB में रहे हैं, रो में रहे हैं, लेकिन आपके पास कौन सी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो आपको इस डिपार्टमेंट में आने के लिए और ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। तो पहला तो आपके पास हो सकता है आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है, या दूसरा हो सकता है आपको देश के अंदर ही काम करने के लिए कुछ स्टेट की लैंग्वेज आती है, ये सुनो, किसी अन्य स्टेट की या कोई अन्य 22 भाषाएं हैं अलग से, उनमें से हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कोई भी अलग भाषा आती है। एंड इफ यू हेल फ्रॉम असम, असमीज आती है, बट असमीज के साथ साथ अगर आपको कोई मणिपुरी भी आती है या समझ लेते हो, बांग्ला भी आती है समझ लेते हो, तो इट इज अ कटिंग एज। लेकिन अगर आपको साथ साथ में इफ यू हेल फ्रॉम एनी टेक्नोलॉजिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्किल और डिप्लोमा, तो बताओ वो गेम और ज्यादा बदल देगा। आजकल एथिकल हैकिंग वाला जो सिस्टम है, या इस तरह का जो AI या मशीन लर्निंग की जो चीजें हो रही है, अगर आपने इसके ऊपर कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कोर्स कर रखा है, एंड इफ यू मेंशन दैट पर्टिकुलर कोर्स इन द इंटरव्यू, तो बताओ आपके इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव है आपके लिए, इट विल कंप्लीटली चेंज, और द टेंडेंसी ऑफ टेकिंग यू इन द डिपार्टमेंट विल राइज और लूज। वो बढ़ेगी या घटेगी? वो बढ़ेगी, वो सर्टेनली इंक्रीज होगी। तो कम से कम आज और आज के बाद कम से कम 3 महीने बाद आपका इंटरव्यू है, कम से कम 3 महीने, ज्यादा भी जा सकता है, कम से कम 3 महीने, क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन होना है, ये पेन पेपर में होना है, प्लेन पेपर दिया जाएगा आपको, वो चेक होएगा, चेक होने में, रिजल्ट बनने में, और टीयर 1 के साथ टीयर 2 की कट ऑफ को ऐड करने में इट विल टेक 1.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली। ये पेपर अगर मार्च में हो भी गया तो अप्रैल मई के सेकंड वीक में जाके तो आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट करना, ठीक है। तो ये एक लाइन वाला नहीं, प्लेन मिलेगा। DFO GD का रिजल्ट कब तक आएगा विकास चौबे? नेक्स्ट मंथ तक आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चांस है सौरभ। अब चांस वांस की तो बात हो चुकी है, अब काम करते हैं कुछ, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में भी ध्यान रखना, ये सारी पॉइंट जरूरी रहेंगी आपके लिए। अगला पॉइंट है जेंडर इंक्लूजन। बताओ अग्निवीर में सिर्फ बॉयज जाएंगे या गर्ल्स भी जाएंगी? और जब बॉयज और गर्ल्स दोनों जाएंगे, मैं बॉयज को B और गर्ल्स को G लिख देता हूँ, तो 4 साल बाद बॉयज भी बाहर आएंगे, गर्ल्स भी बाहर आएंगी। तो मतलब हुआ कि प्रोफेशनल बॉयज बाहर आएंगे तो प्रोफेशनल गर्ल्स भी बाहर आएंगी। तो जेंडर इंक्लूजन बढ़ा या घटा? बढ़ेगा। द अग्निपथ स्कीम opens the door for increased female recruitment, paving the way for। पेविंग द वे फॉर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को सुविधा देना, और इसी को बोलते हैं फैसिलिटेट। पेविंग द वे फॉर, it will pave the way for a more gender balanced military. This reflects India's commitment to inclusivity and empowers women to contribute meaningfully to national defense and national security. And this year also on Republic Day parade you have seen, देखा था बाइक पे 2 बाइक पे 3 लड़कियां स्टंट करती हुई। अरे सर हम देखते ही नहीं है ये सब चीज, हमें बस IB में लगवा दो, लाख रुपए की नौकरी लगवा दो, बाकी चीज गई ऑयल लेने। ऐसे मत करो यार। नेक्स्ट इज एनहेंस्ड पब्लिक मिलिट्री कनेक्ट। अभी तक आप ये देखो मिलिट्री का और पब्लिक का कनेक्ट कितना है। अगर आपको इफ यू गो टू एनी रेलवे स्टेशन एंड इफ यू सी द मिलिट्री रेलवे, आप हो चुके रह जाओगे यार इनकी स्पेशल ट्रेन चल रही है। अगर आपने अपने शहर में मिलिट्री की बस देख ली, आपको अलग ही फील आ रही होगी। वो ऐसे ही देखते हो जैसे गांव में हाथी आ जाता है और सारे बच्चे पीछे पीछे हो जाते हैं उसके। मजाक की बात है पर ऐसा ही होता है। वो कनेक्ट हमारा नहीं है, हम उनको सुपर स्पेशल एंड इनिमिटेबल कैटेगरी में डालते हैं। इनिमिटेबल मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में डाल देते हैं। वो कनेक्ट बहुत ज्यादा बन नहीं पा रहा। कीप योर कैमरा ओपन, आई विल बी हैप्पी टू सी योर रीडिंग फेसेस। आई एम गुड एट रीडिंग फेसेस। जैसे चेतन है वो बीच बीच में हाथ से बता रहा है घटेगा बढ़ेगा। यतेंद्र है, जब मैंने हल्का सा मजाक छोड़ा अभी ऑयल लेने वाला, तो उसके समझ में आया ऑयल का मतलब तेल होता है ना तो उसके समझ में आया। कैन साहब कौन होते हैं? नैन साहब तो सुने मैंने, हरियाणा में जाट होते हैं। कैन साहब भी क्या होते हैं? मेरे लिए थोड़ा सा नया सरनेम है। सर जाटव। जाटव, ठीक है ठीक है ठीक है, जी। बहुत बढ़िया। ऐसे मतलब बुरा नहीं मानना, मेरे को थोड़ा नहीं सा नहीं, सीखना अच्छा लगता है क्योंकि हाँ तो काफी लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ, तो अक्सर क्या होगा आपका इंटरव्यू हो सकता है इसी बेस पे चल जाए कि टेल मी द जी हिस्ट्री ऑफ कैन। जी सर। कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती है। जैसे चलिए बाद में बात करेंगे, इंटरव्यू की बात ही नहीं करनी अभी। लेकिन मैं ये जरूर कनेक्ट करूंगा कि ये सारे सेशंस को इंटरव्यू से कनेक्ट जरूर करके चलना, क्योंकि जब आप अच्छा इनपुट सीख रहे हो, इनपुट मतलब लिखना सीख रहे हो, तो आउटपुट बोलना भी अच्छा आ जाएगा फिर धीरे धीरे करके। इंग्लिश भी, कंटेंट भी और कनेक्ट भी। हंस के बात करोगे, और स्माइल इज द ओनली गेम लाइफ में, ना केवल इंटरव्यू में बल्कि लाइफ में। अरे छोड़ यार, बस वो मिजाज रखना। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता छोड़ यार, ऐसा नहीं, मतलब कोई भी टेंशन है छोड़ यार। पब्लिक मिलिट्री के कनेक्ट बढ़ेगा, और कनेक्ट आप समझ गए होगे, अग्निवीर इंटीग्रेट सिविलियन लाइफ आफ्टर देयर सर्विस। दिस स्ट्रेंथन नेशनल प्राइड एंड क्रिएट अ मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। जो नागरिक होंगे वो ज्यादा सूचित होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, और नॉलेजेबल विद्वान होंगे, और विद्वान को इंग्लिश में कहते हैं
एरुडाइट, नॉलेजेबल, ज्ञानवान, पांडित्यपूर्ण स्वभाव वाले, और इसी को बोलते हैं वेल रेड। ठीक है, बीच बीच में ये वोकेबुलरी थोड़ी बहुत चलाता हूं मैं, इसलिए कि ताकि आपका थोड़ा सा वर्ड्स का लेवल भी बढ़े। अगर आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते रहे, मोनोटोनस हो जाएगा, नंबर एवरेज मिलेंगे फिर। अगर आपने एवरेज लिखा, मतलब आप खुद के लिखे हुए थे, सेटिस्फाई नहीं हुए, लिख दिया यार जो आया मन में, तो नंबर भी उतने ही आएंगे। अगर आप यूं कह रहे हो मेरे नंबर काट के दिखा, तो कल तुम्हारा बयान निकाल दूंगा मैं, ठीक है, कल से नंबर काट के दिखा, क्योंकि अभी तो इनिशियली आप मिस्टेक करोगे और एक बार वो सॉर्ट आउट होगी, खत्म। चलो, ये हो गए 10 पॉजिटिव पॉइंट। अब मुझे बताओ, हाउ कैन यू थिंक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट ऑफ अग्निवीर स्कीम। नाउ एक आंदोलनकारी बन के सोचो, एक प्रोटेस्टर बन के सोचो कि व्हाई डू यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अग्निवीर स्कीम। अब नेगेटिव सोचना तो हाइपर नेगेटिव सोचना, जब पॉजिटिव सोचना तो हाइपर पॉजिटिव सोचना। दिस विल शो द न्यूट्रलिटी ऑफ योर माइंड। और एक ऐसा ही पर्सन बहुत अच्छी इंटेल ग्रैब कर सकता है, अंदर की बातें जान सकता है, खुफिया जानकारी निकाल सकता है। क्योंकि जब आपको आंदोलनकारियों के बीच में खुद मुर्दाबाद के नारे लगने, मोदी मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, उनके साथ मुर्दाबाद, अबे भाई कर क्यों रहे हो, अच्छा अच्छा कौन कौन लोग हैं, और ये काली पगड़ी में कौन है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नया हूं यार मैं, लेकिन अग्निवीर का फॉर्म मेरे लड़के ने भरा हुआ था, मेरे भाई ने भरा हुआ था यार, मैं इसके विरुद्ध हूँ। आप अपनी बात कहते हो, उससे बातें निकलवा रहे हो, आधा झूठ आधा सच, ये सुनो। लेकिन आपको पता तो हो बातें निकलवाने का तरीके के बीच में कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। दैट इज व्हाई डिस्क्रिप्टिव इज देयर रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। अब सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, बस यही समझ लो, इतना ही होता है। तो भाई प्रियंका कह रही है नो जॉब सिक्योरिटी एज द कैंडिडेट विल बिकम अनएम्प्लॉयड अगेन आफ्टर 4 ईयर। वेरी गुड, सारे सहमत हैं, ऑल विल एग्री, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज ओनली फॉर लिमिटेड एज ग्रुप पीपल, अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। यतेंद्र कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल इशू आ जाएंगे, सिक्रेसी के इश्यूज आ जाएंगे। 4-4 साल में तुम सारी सेना को सिखा के भेजोगे, कोई भी 4 साल के उद्देश्य से अंदर की जानकारी निकाल के बाहर बांट देगा। और इस देश में, इस देश के लिए जो इतना सारा हलवा बनाएगा, 2-4 किशमिश खुद भी खाएगा, उस चक्कर में लोग विभीषण हो जाते हैं, या उनको अलग अलग नाम से दिया जाता है। आजकल तो कह सकते हैं नीतीश हो जाते हैं, पलट जाते हैं। हाँ, खाते रहिए, पानी पीते रहिए, कोल्ड ड्रिंक पीते रहिए, और आपके पास कोई पेय पदार्थ तो खाते पीते रहिए, बट सीखते रहिए बस। आर्मी रिक्रूटमेंट बीइंग द इमोशनल इशू लीड्स टू डिस्ट्रेस अमंग यूथ। लेकिन भाई देश इमोशन से नहीं चलता, पॉलिटिक्स चलती है इमोशन से। देश लॉजिक से चलता है, डिप्लोमेसी से चलता है। मालदीव को सीधा प्रहार नहीं किया हमने, लक्षद्वीप में बाबूजी ने एक ट्रेवल किया था बस, और सारा चित तपट। ये सर नो, कितने लोगों ने तो अपने हनीमून के जो टूर थे वो कैंसिल करा लिए मालदीव की, इस लेवल पे इमोशंस। इफ दे डोंट गेट जॉब आफ्टर 4 ईयर दे कैन गो अगेंस्ट गवर्नमेंट एज वेल, दे आर ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड। अब ये भी तो है, जिनको आपने लड़ना सिखाया दुश्मन के खिलाफ, वो आपके खिलाफ भी तो और ज्यादा एग्रेसिव होकर लड़ेंगे। ये सुनो, बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा हाँ भतीजा, तो ये सारे चाचा भतीजा इकट्ठे हो जाएंगे इस चक्कर में। चलिए अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है जॉब इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रेज कंसर्न्स अबाउट जॉब सिक्योरिटी एंड पोस्ट सर्विस करियर प्रोस्पेक्ट। पोस्ट सर्विस मतलब सर्विस के बाद जो करियर के प्रोस्पेक्ट्स हैं, चांसेस हैं, वो घट जाएंगे अग्निवीर के लिए। एंड दिस कुड डिस्करेज टैलेंटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कीम एंड डीमोटिवेट दोज ऑलरेडी एनरोल्ड। जो ऑलरेडी एनरोल्ड है वो डीमोटिवेट होंगे, और जो लोग जाना चाहते हैं वो डिस्करेज होंगे, भाई 4 साल में तो बाहर ही आ जाएगा। बिकॉज इन इंडिया वी सी द गवर्नमेंट जॉब एज अ परमानेंट जॉब। Let me tell you one personal thing related to RNAW. Today, a few of the candidates from Cabinet Secretariat have got the joining letter from Research and Analysis Wing for the post of Field Assistant in Cabinet Secretariat. वो लोग रो में एजेंट का काम करेंगे। सबसे पहले उनकी 3-4 साल ट्रेनिंग होगी इंडिया में, बाद में उनकी स्किल्स और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको देश के अंदर या देश के बाहर डिप्लॉय किया जाएगा। बट इन दैट ज्वाइनिंग लेटर again and again it is mentioned that it is a temporary job, it is a temporary job, it is a temporary job. Why? Because 2 साल के बाद तुम देखो या ना देखो, हम तुम्हें देख के बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज रिटन पार्ट ओनली इन द टर्म्स ऑफ रॉ में ये लिखना पड़ता है। इवन इन आईबी व्हेन यू गेट द ज्वाइनिंग लेटर इट इज मेंशन्ड इट इज अ टेम्परेरी जॉब, इट इज अ प्रोबेशन बेस्ड जॉब। मींस आपको कुछ समय के लिए सर्व करना पड़ेगा, व्हेन आफ्टर दैट पर्टिकुलर 2 or 3 years यू बिकम एक्टिव एंड परमानेंट। क्योंकि तनख्वाह लेने का मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट हो गए। तनख्वाह लेने का मतलब है कि चलो जब तक आप सर्व कर रहे हो, आपकी हम सोशल असिस्टेंस कर रहे हैं, आप अपना परिवार पालन कीजिए। चलिए जी, दूसरा पॉइंट होगा लॉस ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। चलिए, एक वर्ड होता है पर्सनल, PERSONNEL। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, पुलिस पर्सनल, डिफेंस पर्सनल। रिलीजिंग एक्सपीरियंस पर्सनल आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद अनुभवशाली स्टाफ को रिलीज कर देना, हटा देना, निकाल देना, माइट लीड टू अ नॉलेज गैप एंड वीकन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी विद इन द आर्म्ड फोर्स। ये नॉलेज गैप क्रिएट कर सकता है,
ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी गैप क्रिएट कर सकता है या उसको कमजोर कर सकता है। इन पॉइंट्स को प्लीज राइट डाउन। अगर आप इस तरह के वर्ड्स को लिखेंगे तो नयापन भी आएगा और उसको पता लगेगा कि भैया द पर्सन हु हैज रिटन दिस पर्टिकुलर एसे इज वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनके दिमाग में ये वाइब आनी चाहिए कि भाई ये पर्सन पक्का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। चलो एक सीक्रेट मुझे वैसे तो कल बताना था, आज मैं बता देता हूँ। जैसा लिखोगे, जैसा टीयर 2 लिखोगे, टीयर 2 की कॉपी उनके पास इंटरव्यू के दौरान सामने होती है आपकी। और कई बार तो ये भी सवाल पूछ लेते क्योंकि 3 महीने बाद आपका पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, सिर्फ ये टॉपिक पूछ लेंगे जो 5 टॉपिक आए थे उनमें से कौन से टॉपिक पे आपने ऐसे लिखा था, और बच्चे भूल जाते हैं। यस और नो। बच्चे यही नहीं याद रखते टीयर 2 भी हुआ था, उनको लगता है हम जन्म से ही आईबी में इंटरव्यू के लिए पैदा हुए थे। उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, मेमोरी तो चेक करेंगे ना। तो अगर आपके पास वो मेमोरी नहीं है जो आपने अभी अटेम्प्ट करके आए हो, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहां से लाओगे? और 4-4 साल में अगर आईबी भी तुम्हें निकाल दे तो आईबी के डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन की मेमोरी भी तो लूज होगी। यस और नो? बट आईबी की परमानेंट जॉब है, मिलेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे आपसे सबसे। चलिए अगला पार्ट है पोटेंशियल मोरल इशू। मोरल का मतलब क्या बताया था? कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल मोरल इशू भी है। डिसकंटेंट अमंग, डिसकंटेंट का मतलब है, देखो कंटेंट शब्द का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और डिसकंटेंट का मतलब हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन, जो असंतुष्टि है अमंग सर्विंग पर्सनल रिगार्डिंग प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एंड करियर पाथ। हर आदमी चाहता है कि हमारी जॉब लगे, 3-4 साल काम करें, फिर हम ACIO 2 से ACIO 1, ACIO 1 से DCIO 2, DCIO 2 से DCIO 1, और फिर AD रैंक पे रिटायर हो। और जब रिटायरमेंट हो, जब तुम्हारी, चलो तुम्हारे बारे में बता दूं मैं, जब तुम रिटायर होगे एट द एज ऑफ 60, तो तुम्हारी जो तनख्वाह होगी वो 13 लाख रुपए होगी पर मंथ। तब तक प्रमोशन भी हो जाएंगे, पे कमीशन भी लग जाएगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा मेडल्स भी साथ में जुड़ जाएंगे, अचीवमेंट्स भी जुड़ जाएंगी, बोनस भी जुड़ जाएंगे, सिक्योरिटी अलाउंस भी बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? और अंदर की बात नहीं बताऊंगा। मिनिमम 13 लाख प्लस लिख लेना इसमें कुछ भी। सर काहे अभी साला ये तो पता नहीं कि डिस्क्रिप्टिव में बैठ पाएंगे या नहीं, और आप ख्वाब दिखा रहे हो 13 लाख की, और आंकड़ा तो 13 का वैसे ही अपशकुन होता है। और द फियर फ्रॉम नंबर 13 इज नोन एज ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। डिफेंस विल बिकम अनपॉपुलर चॉइस अमंग रूरल यूथ ओवर टाइम, अभिषेक कुमार कह रहे नहीं, हमारे देश में डिमांड इतनी ज्यादा है। मोदी जी ने कभी कहा था वी हैव 3D इन द कंट्री, DDD, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। द थर्ड डी इज डिमांड। मिट्टी बेचोगे ना, बालू बेचोगे, वो भी बिक जाएगी पैकेट में डाल के। हर चीज बिक सकती है, बातें और झूठ तक बिकते हैं। ये तो नौकरियां दे रहे हैं 4 साल के लिए, वो भी तनख्वाह के साथ। तो वो कह रहे हैं भैया प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, और फर्दर करियर पाथ, यार 4 साल बाद कहाँ जाएंगे, किस बीजेपी कार्यालय के आगे ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, बाहर कहीं गार्ड की पोस्ट पे लगा देंगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये नेगेटिव असर डाल रहा है हमारे देश के मोरल को, है ना, मिलिट्री की कोहिजन को। अगला पॉइंट है सोशल स्टिग्मा एंड री इंटीग्रेशन चैलेंज। अब देखो हमारे देश में नौकरियों से रिलेट करके शादियां होती है, जिसकी सरकारी नौकरी है वो 21 साल की शादी होगी, और जो प्राइवेट में घूम रहा है वो 35-35 साल के कुंवारे घूम रहे हैं, है कि नहीं? इससे सोशल हार्मोनी बढ़ रही है, घट रही है? गैप बढ़ रहा है, जेंडर गैप बढ़ रहा है। पहले लड़कियां 18 साल की शादी कर लेती थी, सरकार ने खुद कह दिया 18 साल तक क्यों शादी करो, 21 साल पे शादी करो सबकी, 21 साल तक इनको ग्रेजुएशन करवाओ, पढ़ाओ, फिर ये पकौड़े तलेंगे। मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि मैं नेगेटिव सोचना है तो नेगेटिव सोच, ये पकौड़े पकौड़े लिख के नहीं आने, इससे पता लग जाएगा पक्का कांग्रेसी हो, फेल कर देंगे। ये समझाने के लिए सर। प्रियंका कह रही है मोर एक्सपेंसेस फॉर ट्रेनिंग लीड्स टू मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ सही बात है। एक्सपीरियंस वाले लोग रहेंगे नहीं, निकलते जाएंगे तो ज्यादा आपको एक्सपेंसेस ट्रेनिंग पे डालना पड़ेगा। मोर एक्सपेंसेस फॉर ट्रेनिंग लीड्स टू मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। वी विल हैव टू टेस्ट आवर ऑन मेडिसिन। अनिरुद्ध कह रहे हैं इट विल इंक्रीज द कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट एज द ट्रेनिंग विल बी डन अगेन एंड अगेन, द नेशन विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड अनिरुद्ध, शाबाश। अब अगला पॉइंट है अग्निवीर रिटर्निंग टू सिविलियन लाइफ माइट फेस सोशल स्टिग्मा एंड डिफिकल्टी रीइंटीग्रेशन। मान लो तुम सरकारी नौकरी में और 1 महीने के लिए आप छुट्टी पे गए हो, आप अपने घर वालों के आसपास पड़ोसियों को 2 दिन से ज्यादा दिख जाओ तो उनको लगता है नौकरी से निकाल दिया इसको। अग्निवीर वाले को जिसको सही में निकाल दिया उसके ऊपर क्या बीतेगी? आदमी मरने वाली बात हो गई यार, किसी की रोजी रोटी चली गई। और शॉर्ट टेन्योर के कारण ये पूरा सोशल स्टिग्मा इंबैलेंस होगा एंड दिस कुड लीड टू री अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल एलिनेशन। आपको क्या पता है कि जिसकी 4 साल में नौकरी ले ली है वो बाद में प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में री एम्प्लॉयड नहीं हो पाया, सुसाइड भी कर सकता है, डिप्रेशन में भी आ सकता है, एलिनेटेड भी हो सकता है, अकेलेपन में भी आ सकता है। वही उसके लिए तो वो लॉकडाउन की स्थिति हो गई ना, क्या करें या ना करें कैसी मुश्किल है। अगेन अ पॉइंट ऑफ imbroglio, if you know the word imbroglio, the complex and complicated situation.
अच्छा वर्ड है इम्ब्रोग्लियो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है सीपीओ एंड सीजीएल सीएचएसएल में। प्रियंका कह रही है सर टेररिस्ट भी बन सकते हैं, आईएसआई ज्वाइन कर सकते हैं। हे रुक जा, पहले पहले टेक्निकली नेशनल पर्सपेक्टिव में सोच। एकदम से पाकिस्तानी नहीं बनना, कांग्रेसी नहीं बनना, ठीक है ना, धीरे 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 धीरे। चलिए, ट्रेनिंग इनएफिशिएंसी, द 4-year training period might be insufficient to impact critical combat skills and operational knowledge compared to the traditional recruitment model. This could compromise operational effectiveness and preparedness. हमारी जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस या प्रिपेयर्डनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वो वीक कर जाएगी, वो लैक कर जाएगी अगर हम इनसफिशिएंट लेवल पर 4 ईयर की ट्रेनिंग रखेंगे। क्योंकि 4 ईयर की ट्रेनिंग है, हम तो ट्रेनिंग तो मान लो 6 महीने की है, 3.5 साल और उससे काम करा के छोड़ दिया तो कोई खास फायदा नहीं होगा। और उसके बाद इनएडिक्वेट पोस्ट सर्विस सपोर्ट, सर्विस के बाद में जो सपोर्ट रहेगा वो एडिक्वेट नहीं है, वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। The government's plan for post-service support and skill development for Agniveers might be inadequate, leaving them with limited options and financial insecurity after their service ends. उसके बाद इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा? नाउ यू कैन कनेक्ट द हायर लेवल ऑफ पॉइंट। जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, यूट्यूब चैनल पर देखा करो, कई चैनल है, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स है, अच्छा चैनल है ना, मेरे ख्याल से स्टडी IQ वाले सर थे पहले वो, और अनअकैडमी के थ्रू और पढ़ा रहे हैं, लगभग हिंदी विंदी में समझा देते हैं, समझा करो वो सब, है ना। अगर वो चीज़ आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई विल कीप डूइंग सच थिंग्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हूँ, टेलीग्राम पर या इस पर, मैं जूम पर ज़्यादा कंफर्टेबल या अपनी ऐप पे कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि इस तरह के सोर्सेज में पता नहीं, मैं कभी कभी एक्सपीरियंस शेयर करने लगता हूँ अंदर के डिपार्टमेंट के अंदर के या चीज़ों के, तो फिर मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए तो बहुत फायदा है, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है स्टोरीज, लेकिन वो किसी पर्सन को या किसी डिपार्टमेंट की हानि ना हो जाए नेशनल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये वीडियो खाली इंडिया ही एक्सेस कर सकता है या इंडिया के बाहर के भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी खतरनाक चीजें हों। The scheme potential impact on troop morale and operational readiness could raise concerns about India's military preparedness in the face of complex geopolitical challenge. एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ रेगिस्तान, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ किसी ने ना देखा आईना, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ना देखा किसी ने आईना। तो अगर इतने सारे चैलेंजेस हमारे पास है अड़ोस पड़ोस के, और उसके बाद दूर दूर के तो और भी बैठे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने संसद में ये रिजोल्यूशन लाती है कि मणिपुर वायलेंस गलत बात है, ये देश का इंटरनल मैटर है, तुम्हें क्या मतलब है। म्यांमार की सरकार वहां पर अपने अंदर के लोग भेजकर आंदोलन करवा रही है। चाइना के कई सारे इंटेलिजेंस के लोग, खुफिया लोग मणिपुर में मिले वायलेंस में, दंगा भड़काते हुए। इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश की सुरक्षा जियोपॉलिटिकली खतरे में है या नहीं। और ऐसे हालात में अगर हमारी मिलिट्री कमजोर साबित होगी तो इसका फायदा दुश्मन उठाएंगे या नहीं। यस, दिस इज हाउ यू हैव टू लीड द पॉइंट। सोच बड़ी हो रही है या नहीं। अब बताओ, हर एक टॉपिक पर अगर मैंने इस तरह से माइंडसेट पे काम कर लिया, इन द एंड आपको प्रॉब्लम मेरे से एक और हो जाएगी कि सर जो 5 टॉपिक आने हैं पेपर में, अगर वो 5 आपके पढ़ाए हुए आए तो प्रॉब्लम ये होगी साला चूज कौन सा करें। और मैं चाहता हूँ ये प्रॉब्लम आया, अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन वो द वेरी डे बिफोर डिस्क्रिप्टिव उस दिन बताऊंगा उसका एक सोल्यूशन। आंख मीच के कर देना वो, वही होगा, और आके बोलोगे सर आपको कैसे पता था ये बात, सर किससे रिलेटेड है, आसपास तो बताओ। बस आस और पास निकल ही जाएगा फिर मुंह से, इसलिए चुप। अच्छा, कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता होता है तो इसलिए बोलता हूँ, अनुभव पे खेलता हूँ मैं। अभी मैंने डेट बताई 10 मार्च 17 मार्च, मेरे को डिपार्टमेंट ने थोड़ी ना बता रखी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी ना आई, अनुभव से बता देते कि भाई इतने दिन में अगर पिछली बार हुआ था, इतनी दिन में इतना हुआ था, तो इस बार इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके आगे पीछे हो जाए तो ये थोड़ी ना कि भैया सर, चलिए आगे देखते हैं। इन इक्विटेबल इम्प्लीमेंटेशन, अब बताओ नेगेटिव सोच रहे हो तो सबको बराबर हिस्सेदारी मिलेगी या असमान इन इक्विटेबल इम्प्लीमेंटेशन होगा, बिकॉज concerns exist regarding potential biases and uneven distribution of opportunities within the scheme leading to fears of marginalization. कोई ऑफिसर के ज्यादा सिकोफेंट हो गया, सिकोफेंट मतलब फ्लैटरी करके चाटुकारिता करके उसको प्रमोशन मिल गई, वो अंदर ही रह गया, बाकी जो जय हिंद नहीं बोल पाए वो बाहर निकल गए। जिस कास्ट का सीनियर है उस कास्ट के अपने सोल्जर्स उसने ज्यादा भर लिए, बाकी को नहीं भरे, तो बताओ क्या इस तरह की इनइक्विटेबल इंप्लीमेंटेशन के खतरे हैं या नहीं। यस, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ हो सकता है कुछ सर्टेन कम्युनिटीज का। अब इसमें जानबूझ के ये नहीं लिखेंगे कि जनरल वालों का होगा, ओबीसी का होगा, जनरल स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पे हिंट देके छोड़ देना, बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखना। इससे फिर पता लग जाएगा कि इससे अगर आपने स्पेसिफिक लिख दिया तो ये पता लग जाएगा कि आप कौन सी कास्ट के, कम से कम ये तो पता ही लग जाएगा अपर कास्ट के या लोअर कास्ट के। इसलिए ऐसे में थोड़ा सा जुडिशियस और फेयर पॉइंट में जनरल लिख के लेना, बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। ई दास कनेक्ट हुए हैं, वो पूछ रहे हैं सर आई हैव थ्योरी, ऐसे में किसी का नाम मेंशन कर सकते हैं क्या, लाइक फेमस आर्मी ऑफिसर। किस लिए मेंशन करना है, बी बैलेंस्ड। और अगर आपको करना भी है आर्मी ऑफिसर का नाम कीजिए, वो करंट अफेयर का पार्ट है। बाय राइटिंग अगर आपको प्रधानमंत्री का नाम लिखना पड़े, वहां पे XYZ लिखोगे क्या, XYZ मोदी लिखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी,
लिखना है किसी मुख्यमंत्री का नाम, लिखिए एनडी तिवारी, जिसको अपना डीएनए पहचानने में कई साल लग गए थे, लिख दीजिए, बट वो फैक्चुअली करंट अफेयर का पार्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 एंड 10, उसके बाद एक बढ़िया सा कंक्लूजन और सॉल्यूशन निकालेंगे। एक शब्द होता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है किसी चीज का क्षय होना, खत्म होना। जैसे आपने सुना होगा सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन। तो पब्लिक ट्रस्ट का भी घिसावट होती है, खराब होता है पब्लिक ट्रस्ट। अरे कुछ नहीं रखा इन चीजों में, सब एक जैसे, है ना, सब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो प्रोटेस्ट एंड द परसीव्ड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सराउंडिंग द अग्निपथ स्कीम कुड एरोड पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री लीडरशिप। उनको लगेगा कि सब ये मिलिट्री भी, ये गवर्नमेंट भी, सब मिल। और उधर ही अपन पाकिस्तान को देखें, जहां पे गवर्नमेंट को कौन रूल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, धर्मगुरु और मिलिट्री। ये सुनो, आज भी परवेज मुशर्रफ को ठीक ठाक इज्जत मिल रही होती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो सोचे हैं हमने, वो सोचे हैं, वो धरातल पर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अनसर्टेन। द लॉन्ग टर्म implication of the Agnipath scheme on the military's culture, identity, effectiveness remain unclear, adding to the anxieties, tension, stress and fear. Fear का मतलब होता है apprehension, apprehension मतलब डर, fear surrounding its implementation. तो ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट नोट किए आपने थोड़े से। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर नेपोटिज्म भी आ सकता है। वेरी गुड, नेपोटिज्म होएगा यार। जब मैंने बोला इनएडिक्वेट इनइक्विटेबल इंप्लीमेंटेशन का मतलब ही है नेपोटिज्म होएगा। कोई ना कोई तो सुशांत सिंह राजपूत बनेगा इसमें भी, अग्निवीर में। ये सुनो, अब वो कम्युनिटी के बेस पे हो या टैलेंट के बेस पे हो, किसी भी बेस पे हो सकता है वो। Nepotism may also arise. Those who have some relative already working in forces may get unfair chances of final retention. Yes, I completely agree, Abhishek. चलिए, how many of you like this session? कितने, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपके, क्योंकि सॉल्यूशन में सारा गेम है। अगर आपने यहां तक का लिखा और ऐसा का ऐसा लिखा और लास्ट पैराग्राफ नहीं लिखा तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में जिसमें सॉल्यूशन और कंक्लूजन देने हैं और वो अच्छा लिखा तो आपको +10 और मिल जाएंगे, तो मिलेंगे 20+3, 20/30, या 20 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। जो मैंने पिछली बार बताया था, पिछली बार का टॉपर 23 मार्क्स का था। यानी कि सारा गेम कहाँ है, सोल्यूशन पे। डिसीजन मेकिंग उसी की मानी जाएगी जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। एक बात बताइए, आप लोगों का कोई ना कोई फेवरेट ऐसा पर्सन जरूर होगा जो आपकी उम्र से बड़ा होगा, जो आपके दोस्त बनने के काबिल भी नहीं होगा, जो आपके हो सकता है फादर की उम्र का हो, लेकिन आपकी आपके फादर से ज्यादा अच्छी बनती है उससे, केवल इसलिए कि व्हेनेवर यू आर सराउंडेड विद द नेगेटिव थॉट्स, आप जाते हो, यू वेंट आउट योर ऑल द स्ट्रेस, और वो आपको अरे यार कुछ नहीं है, इसमें ये कर ले, इसमें ये कर ले, इसमें ये कर ले, बाकी मैं बता दूंगा तेरे को, और बाकी तो इस चीज को छोड़, मैं तेरे को सॉल्यूशन दे दूंगा, कल मेल पे ले लियो या कल व्हाट्सएप पे कर दूंगा। और एक तीसरी जो बात बता रहा है ना प्रॉब्लम, उसमें मैं खुद बात कर लूंगा, मेरा एक लाइजन है, मेरा एक कनेक्शन है, खत्म। अब ऐसा आदमी ऐसा यार कभी भी प्रॉब्लम में जाओ सोल्यूशन निकाल के दे देता है। ऐसे मेरे पास आएंगे बच्चे, सर क्या करें सर। मैंने कहा तू 3 आइटम ले पहले, एक रस्सी, एक स्टूल और एक पंखा। बोले सर ये फांसी खाने वाले क्यों बता रहे हो? मैंने कहा सोल्यूशन दे रहा हूँ यार तेरे प्रॉब्लम का, काहे टेंशन में। विल यू प्रोवाइड पीडीएफ? यस, करूंगा क्या मैं पीडीएफ का यार। एक बात बताओ, जो चीज बन गई उसका मैं करूंगा क्या। और इस तरह के कम से कम 75 कंटेंट मेरे तैयार है ऑलरेडी, मैंने अभी अपने सिक्के नहीं उछाले। सर कैन वी यूज ईडीएम एंड स्पीच रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द एसे? प्रियंका, ईडीएम्स यूज करें, बट ऐसा ईडीएम यूज ना करें जो कोई ऑफिसर जो इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में लगा हुआ है वही आपका चेक करने वाला है, वो इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया हुआ उसने, आपने कुछ इंग्लिश मार दी, उसके अर्थ का अनर्थ हो गया, उसने आपको जेनेरिक नंबर दे दिए, फिर फायदा क्या। इसके लिए कहावत है बड़ी देशी भाषा में, मुर्गी जान से जाए खाने वाले को स्वाद ना आए, फिर फायदा क्या। तो आप लिख रहे हो और आपको अच्छे नंबर ना मिले अच्छा लिखने के बावजूद, फिर क्या फायदा। डेकोरेशन ऑफ थॉट करो, डेकोरेशन ऑफ लैंग्वेज मत करो। लैंग्वेज उतनी लिखो जितनी मैं आपको समझा रहा हूँ। सर विद एनोटेशन सेंड करना, कैन वी एक्सेस योर कोर्स ऑन लैपटॉप? यस यस यस, लैपटॉप पे करो, एप्पल पे करो, एंड्रॉइड पे करो, टैब पे करो, टैबलेट पे करो, मेडिसिन पे करो, गोली पे करो, चोली पे करो, कहीं करो, कर लो, बस तैयारी कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। चलो अब बताओ, पॉजिटिव भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए। सरकार कह रही है हम पीछे नहीं हटेंगे, लोग कह रहे हैं स्कीम अच्छी नहीं है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। चलो अब मैं सोल्यूशन के लिए आमंत्रित करता हूं एक एक पर्सन को, और बातचीत की शुरुआत में 3 लोगों ने कैमरे खोल रखे हैं। दोज हु वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन द डिस्कशन मस्ट ओपन देयर कैमरा सो दैट वी कैन हैव द ओपन डिस्कशन। और शुरुआत करते हैं यतिंदर से, फिर आएंगे शिवम पे, फिर आएंगे चेतन पे, ठीक है। यू कैन यूज आइदर ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, जैसा बोलना है। मेरे को थॉट से मतलब है, मेरे को लैंग्वेज से फिलहाल मतलब नहीं है। जी कैन साहब। सर एक तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इजी किया जाए, मतलब हम्म एक टिपिकल ना हो जाता है, ताकि हम्म लोगों को क्लियर ना हो चीजें। हम्म। और सर टाइम टाइम जो 4 ईयर का है सर, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 से कितना एक्सटेंड कर सकते हैं?
सर 10 ईयर 8 to 10 अप्रोक्स 8 to 10 जैसे या एक्सर्विसमैन सर। फिर 4 के बाद अगर निकाल रहे हो तो उसको एक कम से कम एक बॉन्ड बना के दे दो कि अगले 6 साल के लिए आप उस कंपनी में या उस जगह पे या उस गवर्नमेंट एजेंसी में इस पद पर तो रहोगे। इससे ऊपर अगर जाना है तो आप अपनी तैयारी करो, इससे नीचे रहना है तो ये बैलेंस आपको मिलेगा, एक बिल्कुल। गारंटी। जैसे एक्सर्विसमैन सर 10 से 15 साल के बीच में करके आता है तो उसके पास एक अच्छा अमाउंट रहता है, मतलब सेविंग्स रहती है उसके पास, ताकि वो अपना लाइफ स्पेन कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवम कुछ बताओ, फिर अभिषेक पे भी आऊंगा मैं। हाँ हाँ सर। सर फर्स्ट थिंग तो यही कि आई थिंक दैट मतलब टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, मतलब मे बी ये 10 ईयर तक तो मिनिमम होना चाहिए था सर। मतलब और दूसरी बात ये कि मतलब अगर 4 ईयर्स का कर रखा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी प्लान इसमें ऐड करना चाहिए था कि मतलब कुछ ऐसा प्लान इसके बाद हो जिससे उनको मतलब कोई भी जितने भी ये बंदे जो अग्निपथ स्कीम के लिए जा रहे हैं तो उनको जॉब इनसिक्योरिटी का कोई मतलब वैसा फील ना है कि मतलब आफ्टर 4 साल बाद अगर उनके अंदर, जैसे मान लीजिए सर हमने यूजुअली देखा है कि हमारे जो आर्मी वगैरह में अग्निपथ में जाते हैं वो थोड़े रूरल एरियाज के बच्चे ज्यादा होते हैं, तो मतलब उनका थोड़ा सा मतलब क्या है कि सर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह हो गया या थोड़ा जिस हिसाब से उनका जो फिटनेस होता है जितना अच्छा बेस्ट होता है उतनी उनकी मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और मैं बोलूँ इंटेलेक्चुअली उतने वो स्ट्रांग नहीं होते, तो उनको कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि शायद उनको ये थोड़ा सा मतलब उनका कॉन्फिडेंस उनको जो होता है कि यार मतलब 4 साल के बाद शायद अगर उन्होंने निकाल दिया मुझे, क्योंकि जैसे मैं ऐसा जा रहा हूँ अग्निपथ स्कीम में तो सर मैं जैसे रूरल एरिया से मतलब हूँ और मेरा कोई नॉलेज इंटेलेक्चुअलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी स्कूल से हुई भी नहीं हुई है, बस मैंने फिजिकल अपना जो है वो कर रखा हुआ था। यूजुअली ऐसा होता भी था पहले सर, जो जब आप देखें कि क्या कहते हैं परमानेंट आर्मी की जॉब थी तो उसमें गांव वाले बच्चे ये होते थे कि उन्होंने 10th 12th कर लिया, उसके बाद उन्होंने बस फिजिकल अच्छा कर लिया और एग्जाम निकाला और उसके बाद उन्होंने परमानेंट के लिए जॉब ले ली। तो अब वो सर सडन ऐसा चेंज आया तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से उनके अंदर एक बहुत ज्यादा मतलब जैसे काफी सारे बच्चे जैसे और मतलब उनके फादर जो होते हैं वो किसान होते हैं, तो वो लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनकी फाइनेंशियल एड भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उन्होंने जैसे मान लीजिए देख रखा है कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी फला भैया के तरीके या फला सोसाइटी के तरीके मैं भी आर्मी में जाऊंगा, जॉब करूंगा, इस तरह से देश की सेवा करूंगा और प्लस मेरी फैमिली को जो गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं उनका फीड करेगी और उनकी सारी देख रेख वेरी करेगी। गुड, वेरी बट गुड, वेरी गुड। वो सडन, लेकिन सर वो जब सडन क्या कहते हैं ऐसे आ रहा है कि हाँ 4 साल बाद आपको क्या कहते हैं सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है शिवम? हम प्रॉब्लम पे सोल्यूशन बात कर रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है कि हम वी कैन पहली कीप बात। स्पीकिंग अ लॉट, बट द पॉइंट इज, रेलेवेंट पॉइंट है, सोल्यूशन क्या है, बीच की बात क्या है? और सोल्यूशन सर ये हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसी स्किल्स और कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह लानी चाहिए पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए जो 75% बच्चे जो उनसे बाहर होंगे, तो उनको ताकि गवर्नमेंट वहां पर वो स्किल्स दे सके ताकि जब वो वहां से वो स्किल्स शायद 2-3 साल जितने का भी हो सकता है, मतलब ये 4 साल के बाद तो फिर उनको कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर कोई ऐसी अच्छी जॉब मतलब जिसमें उनको सिक्योरिटी हो और उनके शाबाश, अलाउंस शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो उनको सर वो चीज मिल पाए, तो उससे उनका एक गवर्नमेंट के प्रति विश्वास जगेगा और इस स्कीम के प्रति वो इंटरेस्ट आएगा कि हाँ अभिषेक मतलब कुछ बताओ। ऐसा होना चाहिए। सर इसमें एक तो सर 3-4 पॉइंट हैं। जैसे मेरे को लगता है जैसे आर्मी में सर शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है तो सर मिनिमम 9 साल का तो होता ही है, तो यहाँ पर सर ये 4 साल वाला सिस्टम करके थोड़ा टाइम एक तो इसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। और दूसरा सर इसको मतलब एज अ पायलट बेसिस टेस्ट करना चाहिए था सर, मतलब एकदम ऐसे गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था कि मतलब ये अब यही रहेगा फाइनल यही है, तो थोड़ा सर इसको पायलट बेसिस पे करना चाहिए था। जैसे एसएसबी में सर इन लोगों ने पहले डी नोवो एसएसबी का कॉन्सेप्ट लाना चाहता जैसे 3 डे की एसएसबी, यूजुअली 5 डे की एसएसबी होती थी, तो सर ऐसे पायलट बेसिस ट्राई करना था। और दूसरा ये कि सर ये 25% से आपको थोड़ा सा अगर मतलब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है मतलब यूथ में, तो सर इसको थोड़ा सा बढ़ा के 50% करना चाहिए रिटेंशन। और दूसरा चौथा सर पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे अगर जो बच्चे निकल गए 4 साल बाहर तो सर उनको ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि यार मैं तैयारी करूंगा ऐसा करूंगा, इतना इजी कर देना चाहिए उनके लिए सर आगे के लिए एम्प्लॉयबिलिटी। जैसे क्या होता है कि एक सर्विस में बाहर निकल के आते हैं यूजुअली बैंक में सर्विस मिल जाती है उनको या टीचर बन जाते हैं, तो इतना ईजी हो जाना चाहिए कि मतलब ये डिबेट ही मतलब डाई डाउन हो जाना चाहिए अपने आप में कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी उसके बाद इशू नहीं रहना चाहिए बहुत बेसिकली। बढ़िया। अभिषेक, हाउ ओल्ड आर यू? सर 24। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड है, शाबाश। अभिषेक कितने बन रहे हैं अभी आपके मार्क्स? सर 54 बन रहे हैं ओबीसी और 18 जैन 4 शिफ्ट है सर। शाबाश, बहुत बढ़िया अभिषेक, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा जो लुक है। हाइट क्या है तुम्हारी? सर 178 सेंटीमीटर। थोड़ा सा फीट एंड इंच में बताओ। सर 5'10"। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं? सर एक्स सर्विस मैन, एयरफोर्स से रिटायर्ड। वेरी गुड। और ग्रेजुएशन में क्या किया? सर बीए ऑनर्स किया सर पॉलिटिकल साइंस से बीएचयू से। बीएचयू से? यस सर। शाबाश। मदन मोहन मालवीय के बारे में बताओ 5 पॉइंट, कोई भी। सर अभी ऐसे तो मेरे को याद नहीं सर ऑनेस्टली, पर यार ये इनको इतना भारत मालूम है। रत्न मिला है। हाँ ये सर यही सर जेनरिक पॉइंट्स बता सकता हूँ बस कि जनरिक हाँ नहीं था, उन्होंने। यही पॉइंट से निकालना है बस। अच्छा सर। अच्छा, मदन मोहन मालवीय कांग्रेसी थे या नहीं? हाँ सर याद नहीं मेरे को। चलो देखना, यहीं पे डिस्कशन घूमती है बीएचयू वालों की इंटरव्यू में। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया अभिषेक, शाबाश। चलिए, मेरे ख्याल से सौरभ भी जुड़े हैं। सौरभ, यू वांट टू इनकलकेट सम मोर पॉइंट्स? How is the discussion going on? Kindly comment. At least if you are only a listener, if you are not taking the part in the dialogue, at least you can comment in the chat box. आप कम से कम एक चैट बॉक्स में डाल तो सकते हैं, बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है, बेकार है, ये क्या सुनने में मजा आ रहा है। और कितने लोगों को वैल्यू पॉइंट मिले, जितने मैं लेके आया था उससे भी ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं?
सर जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए सीएपीएफ या जो अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उसमें 25% का रिजर्वेशन है, लेकिन आज तक अपन देखते आ रहे हैं जैसे कि 2018 के बाद में या 19 के बाद में वैकेंसीज बहुत कम आई है, और उनमें जो पर्सन जाते हैं वो खाली 10% के अराउंड जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम उसमें रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। अगर रिजर्वेशन बढ़ाएंगे तो वो पहले वाला 25 था, ये 10% बढ़ाएंगे, मतलब जो पहले था उसमें से कम कर रहे हैं। तो इसमें ये एक क्लियर करना पड़ेगा कि आप 25 में से 10% बढ़ा रहे हो या 25 में 10% जोड़ रहे हो। और दूसरा है सर जैसे कि वो कहाँ से सौरभ? सर राजस्थान, कहाँ से? फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान विच इज जयपुर से 180 किलोमीटर सर। ये मत बताओ झुंझुनू। तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, रानी सती का मंदिर है ना जी सर। तुम्हारे झुंझुनू में? ये सर। वहीं मेरे बाल उतरे थे बचपन में। चलो बताओ बताओ। और सर दूसरा ये अपन को ये थोड़ा क्लेरिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि सर पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी वो जैसे जिस फ्रीक्वेंसी से आज चल रही है वैसी पहले चल रही थी। अगर अपन उतने इंडेक्ट कर रहे हैं और उसमें से भी अपन 75% आउट कर रहे हैं तो इस हिसाब से अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। लेकिन आपने जो सही बात। आपको ये इंटेक का फ्रीक्वेंसी है आपको बढ़ानी पड़ेगी इस हिसाब से आपको। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूशन आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल टूल होता है। इसमें शुड करना चाहिए, और शुड को एक और वर्ड बोलते हैं ऑट टू। सुना है? OUGST, ऑट टू। सबसे, और या फिर बहुत ही ज्यादा करना चाहिए, मस्ट। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन वगैरह लिखते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना। शुड, ऑट टू या मस्ट का इस्तेमाल करना, या नीड टू। नीड टू, सरकार को जरूरत है। जैसे नहीं बोलते, इफ वी वांट टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर वी नीड टू ड्रिंक 8 to 10 लीटर्स ऑफ वाटर। वी नीड टू, वी शुड। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अमित, यतेंद्र ग्रेट सर, नवी ग्रेट सर, सरोज वंडरफुल, चेतन गुड सर, नवी कह रहे बट लेक्चर सर, माइंड ओपनिंग सेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए अब वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन या कंक्लूजन देखते हैं। द अग्निपथ स्कीम एम्बॉडीज अ बोल्ड विजन फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, येट फिर भी द सिमरिंग टेंशन, सिमरिंग का मतलब है उबलती हुई टेंशन, बिटवीन प्रोग्रेस एंड डिसकंटेंट। एक तरफ हमें मॉडर्नाइजेशन या प्रोग्रेस चाहिए, दूसरी तरफ डिससैटिस्फैक्शन है। इसके लिए हमें एक नुआंस्ड सॉल्यूशन चाहिए। नुआंस सॉल्यूशन होता है, नुआंस का अपना मतलब होता है एक, देखो एक होता है न्यूआंस और एक होता है न्यूसेंस। तो न्यूसेंस मिटाने के लिए एक न्यूआंस्ड सॉल्यूशन चाहिए, जिसको सटल है, पहचाना ना जा सके बट क्लियर करना पड़ेगा। ओनली डिसमिसल ऑफ पब्लिक कंसर्न, मियर का मतलब होता है ओनली, खाली पब्लिक कंसर्न को डिसमिस कर देना वुड अंडरमाइन द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, वाइल सिंपली अबंडनिंग, अबंडन का मतलब होता है लीव, छोड़ना, त्यागना, या सिर्फ छोड़ देना द स्कीम वुड जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का मतलब होता है एंडेंजर, खतरे में डालना। लिखते रहना भाई, लियोपार्ड से जियोपार्ड याद करके एंडेंजर याद कर लेना। और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो खतरे में आ जाएंगे। द पाथ फॉरवर्ड लाइज इन सीकिंग अ मिडिल ग्राउंड, तो हमें मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। वेयर इनोवेशन थ्राइव्स अलोंग विद पब्लिक ट्रस्ट। थ्राइव का मतलब होता है, देखो एक होता है स्ट्राइव और एक वर्ड होता है थ्राइव, दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। स्ट्राइव शब्द का मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई, और थ्राइव का मतलब होता है ग्रो या प्रोग्रेस, बढ़ना, उन्नति करना। तो इनोवेशन को बढ़ना चाहिए पब्लिक ट्रस्ट के साथ साथ। कितने वर्ड्स करा दिए होंगे आज? कम से कम 10-12 वर्ड्स तो करा दिए होंगे वोकैबुलरी, और सारे के सारे काम आएंगे, लिखने हैं, मेंशन करने हैं। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, होमवर्क तो क्या दूं मैं आप लोगों को, आप मेरे सीनियर हैं, कम से कम 10-10 साल बड़े ही होंगे मेरे से, आपको क्या होमवर्क दूं? पर ये है कि आज रात में जब मैं सेशन खत्म करूंगा अभी 10 मिनट बाद, आधा घंटा इस सेशन पर इसके ऊपर 400 वर्ड लिख के देखना। कलम कांपेगी, माइंड में थॉट नहीं आएंगे। और ये तो वो है जो अभी अपन ने 1 घंटा डिस्कशन की है, और कल को वो टॉपिक जो कल मैं बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे अग्निवीर को मेंशन ही ना करता तो बताओ सिक्योरिटी नीड में क्या क्या लिख रहे होते अभी तक। आधे लोग तो आईबी पे ही लिख रहे होते, आईबी वालों को खुश करने के चक्कर में। उनको खुश नहीं होना, उनको तुम कैसे भी खुश कर दो, बस आसपास नेशनल सिक्योरिटी घूमना चाहिए। और तुम तैयारी कर रहे हो एसएससी की, एसएससी की, उसमें ऐसी तैसी करवा रखी है 3-4 साल से। उसमें टीयर 1 नहीं हो रहा, फिर टीयर 2 नहीं हो रहा, फिर टीयर 2 हो गया तो सही से डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, फिर कहीं और तमिलनाडु में फेंक दिया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है भैया सबसे ऊंचा, जेनिथ, क्लाइमेक्स, कल्मिनेशन। The government must proactively engage with stakeholders, addressing anxieties and clarifying ambiguities. Ambiguities का मतलब होता है confusion. Concerning post service opportunity, जिसको भी post service opportunity से related confusion है, गवर्नमेंट उसे कहे हाँ भाई क्या समस्या है मेरे को बता, मैं सोल्यूशन निकालता हूं। ट्रेनिंग एडिक्वेसी,
जितनी भी पर्याप्त ट्रेनिंग होनी चाहिए, करियर प्रोग्रेशन पाथवेज, इसके बाद तुम क्या करोगे उसके ऊपर क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए सरकार की टू एड्रेस लेजिटिमेट यानी कि लीगल कंसर्न, कैसे आप करोगे सो दैट दे कैन रिबिल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन द ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ द स्कीम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्सेप्ट कर सके। समझ में आया? अच्छा सोल्यूशन है, बैलेंस्ड अप्रोच है, सही से लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे लिखना है। उसके बाद सेकेंडली, एनहेंसिंग पोस्ट सर्विस सपोर्ट इज क्रूशियल। नौकरी के बाद क्या करोगे ये सपोर्ट देना क्रूशियल है। इसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल बनाने पड़ेंगे जैसे कॉलेजों में होते हैं, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके अग्निवीर इनटू सिविलियन लाइफ। उसके बाद फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड री इंटीग्रेशन सपोर्ट कुड फर्दर एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, और एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। ठीक है, बोथ आर एंटोनिम्स। और इससे फिर भैया स्कीम को ज्वाइन करने के लिए जो टैलेंटेड इंडिविजुअल है वो इंसेंटिवाइज फील करेंगे, अदरवाइज भाग जाएंगे। अभिषेक भी कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास भी, तरुण भी कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास भी। थर्डली, अडॉप्टिंग द स्कीम्स पैरामीटर्स कुड बी कंसीडर्ड extending the service period slightly or offering variable contract lengths could provide a balance between operational experience and job security। यही बात हम लोग कर रहे थे अलग अलग शब्दों में। एक्सटेंडिंग द सर्विस पीरियड स्लाइटली, धीरे धीरे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ ताकि विश्वास बढ़े। या फिर ऑफर वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट लेंथ कुड प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन उनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और जॉब सिक्योरिटी के बीच में वो गैप खत्म। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द वे ऑफ राइटिंग दैट थॉट विच यू वर टॉकिंग अबाउट, दैट एप्रीहेंशन ऑफ द फियर। हाँ चेतन आ रहा हूँ मैं, हाँ चेतन तो मतलब मैं नाम ले चुका हूँ पहले से ही। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। आजकल हाइब्रिड गायें, हाइब्रिड भैंस, हाइब्रिड मुर्गियां, आजकल तो बैच भी हाइब्रिड आ गए कई जगह यूपीएससी में, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो एक साथ चलता है उसको बोलते हैं वो लोग हाइब्रिड, हाइब्रिड बैच। मैंने कहा इसमें से बच्चे पैदा होंगे या नस्ल तो चलिए, a hybrid model incorporating both long term and short term recruitment could cater to diverse aspirations and mitigate the risk of knowledge gap। तो शॉर्ट टर्म वाले भी लोग लो, लॉन्ग टर्म के भी लो, ओनली शॉर्ट टर्म मत करो इसको। फाइनली, ongoing consultation and evaluation are vital। vital का मतलब होता है something very necessary और important, समथिंग वेरी नेसेसरी और इंपॉर्टेंट। पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना। कितने लोगों ने अपने कॉपी पेन पे नोट किया आज? ट्रस्ट में बता रहा हूँ, जिसने भी नोट किया है 5 पॉइंट भी अगर नोट किए होंगे, लिखा हुआ याद रहता है या सुना हुआ? लिखा हुआ याद रहता है। बचपन की बात आज तक याद रखना, लिख लिख कर याद करो। एक मिस्टेक करते थे ना स्पेलिंग की, तो वो प्राइमरी स्कूल की जो टीचर था या थी जो भी था, वो 10 टाइम्स लिखवाता था, 20 टाइम्स लिखवाती थी मैम। उसका मतलब था कि बेटरमेंट होता, याद रहता, गलती। कमेंट बॉक्स में बताओ जिस जिसने लिखा है आज। द स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, देख रेख की जानी चाहिए। देखो अब देखो मस्ट लिखा हुआ है ना, आ गया ना मस्ट, मस्त मस्त नहीं मस्ट। with adjustments made based on feedback and emerging challenges, a flexible approach that consider evolving dynamics and address real-time concerns will ensure the Agnipath scheme evolves into a truly transformative and inclusive product। ठीक है, हम सरकार के साथ है ट्रांसफॉर्मेटिव हो, पर हम जनता के साथ भी है कि ये इंक्लूसिव भी लगे। ये सब नो, तो दोनों लोगों के शब्द ले लिए लास्ट में, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ राइटिंग कंक्लूजन एंड सोल्यूशन। ठीक है, चलो आखिरी में देख लो। इन कंक्लूजन, navigating the delicate equilibrium between the modernization and public discontent requires a multi-pronged approach। और फिर जाके आप कह दोगे कि पब्लिक एस्पिरेशन से सिक्योरिटी नीड को बैलेंस करना इस तरीके से जरूरी है। ओपन डायलॉग हो, पोस्ट सर्विस सपोर्ट के लिए सिस्टम हो, स्कीम के पैरामीटर फ्लेक्सिबल हो, इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअस हो, ताकि इसके ये स्टेपिंग स्टोन बन सके रिकंसाइलिंग नेशनल सिक्योरिटी इंपैरेटिव विद पब्लिक एस्पिरेशंस। और बाय अडॉप्टिंग और एम्ब्रेसिंग दीज प्रिंसिपल्स, the Agnipath scheme can blossom and increase into a catalyst for not just military rejuvenation but also national unity and progress। क्योंकि जब एक पर्सन के घर में 30-40 हजार की तनख्वाह आएगी तो देश ग्रो करेगा या नहीं? वो कम लोग नक्सलिज्म में जाएंगे, कम लोग इंसर्जेंसी में जाएंगे, कम लोग पत्थर उठाएंगे, कम लोग स्टोन पेल्टिंग में आएंगे। यही तो देश की प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी की। आईबी को क्या झेलना पड़ रहा है? आईबी की प्रॉब्लम पार्लियामेंट के पास घूमना थोड़ी ना, पार्लियामेंट के पास तो वैसे ही एक अटैची लिए हुए प्रधानमंत्री के आसपास ही दिख जाएंगे। वो अटैची नहीं है, वो शील्ड है एक्चुअली। उसके पीछे तो पता नहीं जेड लगी हुई है, एनएसजी लगी हुई है, वाई लगी हुई है, एक्स लगी हुई है, कौन कौन लगी हुई है सिक्योरिटी। अंदर की खबर तो वहीं से निकालेंगे ना, जहां भैया कौन आग कहां से। और इन्फ्यूजन खाली देश के अंदर से नहीं आ रहा आजकल, देश के बाहर से भी आ रहा है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, सब जगह से कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है। अब सवाल आता है कि इस पूरे को 400 वर्ड में कैसे लिखे। इसका सैंपल आंसर मैं डाल दूंगा 400 वर्ड का, और इसके 2 सैंपल आंसर डालूंगा, 2, एक लेवल 1, एक लेवल 2, एक आसान भाषा में, एक स्टैंडर्ड भाषा में, इंग्लिश में। हिंदी में भी चाहिए तो बता देना। हिंदी में नहीं दे पाऊंगा यार, हिंदी में फिर एक आधी चीजें ना तुम खुद कर लेना गूगल ट्रांसलेट, मेरे से मत करो।
Yes, sir, I have written, but I am willing to write the answer in proper format, but I have written in only generalized form points. Sir, please specify if we start the essay, what kind of start we should write. अभी नहीं, कल बताएंगे, या कल भी नहीं, तो पहले तो माइंडसेट खोलना तुम्हारा। एक बार once you are open with your mind, फिर तो कनेक्शन और करेक्शन कैसे भी कर लेना यार। बात समझ में आई? चलो, सो जितने भी लोग हैं, हाँ भाई चेतन तुम भी बताओ कुछ पॉइंट। सर जैसे आपने कहा वही मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था ये वो ये है तुम्हारी कि अगर आवाज कट रही है गवर्नमेंट यार। चाहती है, हाँ अब बोलो। सर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 4 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते अग्निवीर वालों का जो गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके लिए कुछ 2-3 चीजें कर सकती है। या तो उसको फाइनेंशियली हेल्प दो जब तक कि उसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए, ताकि बता उसको दिया, ऐसा ना लगे कि देखो वो बता दिया, देखो किसी भी तरीके से वो बता दिया कि पोस्ट सर्विस सपोर्ट देना जरूरी है, उसको तरीका बता दिया ना अपन ने। उसके अंदर इंक्लूड हो गई ना ये बात। उसको अब स्किल डेवलपमेंट करवा दो ताकि वो खा कमा सके किसी और तरीके से। उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवा दो ताकि और अल्टरनेटिव अप्रोच उसके पास आ जाए। वो उसके अलावा जहां वो काम कर रहा है वहीं पे एक प्लेसमेंट सेल बना दो, जैसे कॉलेज वगैरह में होती है, वहीं से उसको एक री रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिल जाए। आया ना समझ? उस एक वर्ड में आपका पूरा थॉट लगा हुआ है, और यही चीज सीखनी है अभी आपको। ठीक है, चलिए फिर भी ये पहला बेसिक सेशन है आप सबके लिए, और ये एक जनरलाइज मैंने टॉपिक लिया है। इसके अंदर मैंने किसी तरह की इंटेलिजेंस, वॉरफेयर या बहुत ही ज्यादा ट्रेड क्राफ्ट या इंटेलिजेंस में यूज होने वाले वर्ड्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। वो वर्ड्स के भी इस्तेमाल करने में सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि जब आपका वो इवेल्युएट करता हो तो उसके दिमाग में ये जाए, इनको ये सब कैसे पता है, या तो ये पहले से सिक्योरिटी असिस्टेंट लगा हुआ है, या इसने आईबी की ट्रेनिंग ली हुई है, या पक्का इसके घर में कोई आईबी में है। इस आदमी को अंदर ही बुलाओ, इसके पक्का 40 नंबर दो। अभी वो वर्ड्स बाद में बताऊंगा सिर्फ, वो कौन कौन से बातें इंजेक्ट करनी। आपको किसी भी तरीके से उसको ऐसा कर देना है, बाप रे बाप ये कैसे जानता है इस चीज को। इंटर सर्विस अब्जॉर्प्शन दैट विल स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग थिएटर कमांड इन आर्म्ड। वेरी गुड तरुण, बहुत बढ़िया पॉइंट है थिएटर कमांड वाला। चलिए, सो डिस्क्रिप्टिव बैच के लिए हमारा जो फर्स्ट बैच है वो कल से हम शुरू करेंगे 30 जनवरी 2024 से। बैच 2 14 फैब से, बैच 3 1 मार्च से, बैच एक ऑफलाइन बैच दिल्ली सेंटर मुखर्जी नगर में 2 फैब से, और इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट बैच ऑफलाइन बैच 14 फैब से बनाएंगे। इसके लिए जो बैच 1 है, क्लास टाइम रहेगा 8 PM, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 60 मिनट से 90 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहेगा आपके पास 2 वीक्स या 15 वर्किंग डेज, और इसके अलावा आपके पास मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे ऑफ या डाउट एंड रिवीजन, संडे को मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होगा आपका 11 से 12 हर संडे, क्योंकि आपका पेपर भी संडे को ही होगा 11 से 12। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट करने वाला हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि सर हम आपके साथ वो टाइम लॉक करना चाहते हैं? 11 से 12 के बाद आप भाग जाना, खेल लेना, कूद लेना, कुछ करना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं 1 दिन में 2 दिन में चेक करके दे दूंगा। ठीक है ना? 1 दिन 2 दिन लगते नहीं है, क्योंकि जितने रेडी तुम होते हो ना कि सर हमें लिखना है हमें लिखना है, उतना ही मैं भी उतावला होता हूँ। आज किसका क्या चेक करना है, किसके कितने गोले लगाने, किसके नंबर 10 देने शुरू में तो गलतियां ही निकलेगी, बाद में जाके ठीक ठाक हो जाएगी मामला। ठीक है, अच्छा लिखना। चेतन समृत लेट आए हो तुम। जितेंद्र भैया कुछ बताना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया ना कि कोर्स का ड्यूरेशन 2 वीक्स और 15 वर्किंग डेज है, तो आप बता रहे हो ना मॉक का जो एवोल्यूशन होगा और जो मॉक्स वगैरह होंगे वो टिल एग्जाम होंगे, या मतलब उसका क्या रहेगा? ये देखो जी, 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट है, यानी आपका कोर्स पूरा होने के बाद भी यू आर इनवाइटेड इन मॉक टेस्ट, योर टेस्ट सेट विल बी इवैल्यूएटेड। ओके ओके, एनी डाउट? नो थैंक यू सर। एंड आई एम नोन फॉर गिविंग मोर देन व्हाट आई प्रॉमिस। मैं हमेशा अपने कोर्स ड्यूरेशन में, जब इंटरव्यू का बैच भी बनाता हूँ तो लिखता हूँ 7 डेज की क्लास लगती है, लेकिन वो क्लास कई बार 28 दिन चलती है। अभी भी मैंने बोला 15 दिन की क्लास चलेगी, मुझे नहीं पता 22 दिन चलेगी या 25 दिन चलेगी, पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ 15 दिन चलेगी, ताकि 15 के बाद कोई बच्चा उस क्लास को अटेंड करे ना करे उसका नुकसान है, क्योंकि 15 के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। क्योंकि जब आपका माइंडसेट बन चुका होगा, मिनिमम व्हाट आई नीड इज 15 डेज मिनिमम, दिस इज मिनिमम। ओके, तो द सेशंस विल आल्सो हेल्प अस इन द थॉट प्रोसेस, राइट? ओनली थॉट प्रोसेस, क्योंकि Okay. एक बार थॉट प्रोसेस बन गया फिर तो ड्राफ्टिंग ऑफ ऐसे कैसे करते हैं, पिछले साल बच्चों ने कैसे लिखा था, ये तो कहीं से भी कोई भी बता देगा यार। ओके ओके, यस और नो जितेंद्र भैया, मतलब बी मैच्योर। बिहार से हो क्या? ना सर राजस्थान से। राजस्थान कौन सा जिला है? जोधपुर से सर। जोधपुर। जोधपुर में तो तुम्हारा आईबी का ट्रेनिंग सेंटर है। आई डोंट नो सर। हाँ देख लो, और तुम्हारी ट्रेनिंग भी जोधपुर ही होगी, देख लेना, IBSC होगा। आपके मुंह में घी शक्कर सर। ठीक है, कितने साल के हो? 25 सर। 25। तो ये वर्ष आपका आखिरी वर्ष हो नौकरी की तैयारी करने के लिए, मेरी उम्मीद यही है। IB टाइप की नौकरी के लिए आखिरी वर्ष हो, उसके बाद IPS बनो, UPSC करो, कुछ ही करो, डेपुटेशन हाँ सर, यही करना है, डेपुटेशन यही करना लो, है। रॉ में जाओ, कुछ ही करो। पापा जी क्या करते हैं? तो बैंक में सर, बैंक बहुत मैनेजर। बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक चीज और बता दे, आखिरी ग्रेजुएशन कौन से टॉपिक में? सर सिविल इंजीनियर। शाबाश। मैं एक बात बोल दूं जितेंद्र, सबके सामने एक बात बोल रहा हूँ आज। ओके सर ओके। 6 फीट 4 इंच का एक पर्सन होगा जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होगा, और वो IPS है, और तुम्हारा इंटरव्यू जयपुर में होगा जितेंद्र, और ये पर्सन टेबल से लगभग 4 फीट आगे हाथ ला के और पूछता है, हाँ भाई बताओ, आंख में आंख डाल के, और तुम्हारा मुंह हो जाए ऐसे, कुछ भी हो बस उसे मत करना।
बाकी जिस दिन रिजल्ट आएगा जुलाई में या कभी भी जून में, तो यू विल सी योर नेम। और मैं ये सबके सामने घोषणा कर रहा हूँ, जितेंद्र तुम बैच लो ना लो, पढ़ाई करो ना करो, टीयर 2 में क्वालिफाई हो ना हो, जो भी होगा डेस्टिनी में, बट आप अपना रोल नंबर देख लेना, फाइनल रिजल्ट, ट्रस्ट मी। और ये मैं किसी का भी देख के बता दूंगा, शक्ल से अकल से, सिर्फ 2-3 चीज पूछता हूँ मैं, कॉमन चीजें मेरे पास, अगर आपने ध्यान दिया, कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं, और ग्रेजुएशन किस टॉपिक। इन 3 चीजों से अगर मैंने आपके पूछ ली 4 दोस्तों के नाम बताओ, या फिर आपसे पूछ लिया आपने अभी तक कौन कौन से पेपर की तैयारी की है, तो उससे और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। यही चीज वो इंटरव्यू में चेक कर रहे होंगे, उसका काम हमारे ऊपर छोड़ दो, फिलहाल ये कर लेना जितना भी करा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला है। सर एनी पर्टिकुलर मैगजीन यू वुड सजेस्ट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बुक आती है, अशोक सिंह की शायद बुक है, और भी कई सारी बुक है ना, वो कोई भी एक बुक पढ़ लेना, चल जाएगा काम। इसके अलावा एक बुक और भी आती है, पवनीत सिंह की भी बुक है, वो भी पढ़ सकते हो आप। या फिर चाहोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी पे जो करंट टॉपिक प्लस स्टैटिक टॉपिक के ऊपर मैं एक ई बुक अपने बैच में भी डालूंगा, लगभग 30-40 पेज की, खाली उसको भी कर लोगे तो काम सारा हो जाएगा। ठीक है। मैगजीन से करना है तो जैसे विजन आईएएस आती है ना मैगजीन, विजन आईएएस, उसमें खाली इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन पढ़ लिया करो मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे मिलते थे, ईयरली 365 वाला कर लेना, बहुत सारा एम्पल कंटेंट इज देयर। हाँ पीटी में 365 वाला, आईपीएस मतलब यूपीएससी बोला मैंने तरुण। ओके, और कोई सूचना, और कोई चीज पूछनी कहनी हो? हेलो। हाँ भाई शिवम। हाँ सर, मेरी भी भविष्यवाणी कर दीजिए रिगार्डिंग अभी आईसीयू। कुछ नहीं हो सकता अभी, 250 लोगों का कुछ नहीं है। जो आदमी खुद भविष्यवाणी जानना चाहता है, इसका मतलब वो डरा पड़ा है। जिसके लिए मन से खुद निकल जाए, देखो वही चीज सफल होती है। मैं कोई बागेश्वर धाम का कोर्स तो कर नहीं रखा मैंने, तेरा पर्चा लिख रखा है मैंने, मान ली। है ना? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। I have a question, sir.